آغاز میں آپ کو بتائیں کہ بہاول نگر میں خوفناک ٹریفک حادثہ ہوا ہے۔ تیز رفتار کار درخت سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 6 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ خاتون شدید زخمی ہے۔ جاں بحق افراد میں 4 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں۔ امدادی ٹیموں نے لاشیں اور زخمی خاتون کو اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ افسوسناک خبر ہے بہاول نگر سے، جہاں خوفناک ٹریفک حادثے میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تیز رفتار کار درخت سے ٹکرا گئی اور جاں بحق افراد میں 4 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں۔ اسلام آباد کی تھانہ کوہسار پولیس فواد چودھری کو لے کر پنجاب فرانسک لیب پہنچی۔ کچھ ہی وقت میں فواد چودھری کو پنجاب فرانسک سائنس ایجنسی سے واپس لے جایا گیا۔ فواد چودھری کو ان کے گھر ڈیفنس لے جایا جا رہا تھا۔ تھانہ کوہسار پولیس کے پاس فواد چودھری کے گھر کے سرچ وارنٹس ہیں۔ اسی پر تفصیلات بھی جان لیتے ہیں۔ نمائندہ نیو نیوز ارسلان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارسلان، تازہ ترین اپڈیٹس دیجیے گا۔ بالکل جی عائشہ، یہ پنجاب تھانہ کوہسار کی پولیس کے پاس 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ہے فواد چودھری کا۔ اسی سلسلے میں جو ہے وہ انہیں پہلے پنجاب کی فرانسک لیب ٹھوکر نیاز بیگ پر لایا گیا، لیکن کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی ایک بڑی تعداد یہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئی تھی، جس کے بعد وہ فوری تھانہ کوہسار کی پولیس نے یہاں سے انہیں نکال کر ان کے گھر کی طرف رخ کیا۔ اس وقت جو ہے ان کے گھر کی طرف جو ہے انہیں لے جایا گیا ہے، جہاں پہ سرچ وارنٹ جو ہے ان کے پاس موجود ہے۔ ان کے گھر کی جامع تلاشی لی جائے گی اور وہیں اس کے بعد جو ہے اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ دوبارہ انہیں فرانسک لیب جو ہے وہ لے جایا جائے گا، جس کے بعد اسلام آباد کے لیے دوبارہ انہیں واپس لے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر حیدرآباد کے شہری سراپا احتجاج ہیں۔ شہر میں مسافر گاڑیوں کے کرایوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے حیدرآباد کے بیورو چیف ناصر شیخ سے بات کرتے ہیں۔ جی ناصر، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر 35 روپے فی لیٹر کے اضافے کے ساتھ ہی شہریوں میں بھی شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ حیدرآباد میں جو ہے وہ شہریوں میں شدید اس حوالے سے اضطراب پایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ایک سامع جی، بتائیے گا یہ جو قیمتیں میں اضافہ ہوا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ پہلے عوام مہنگائی کی چکی میں پس چکی ہے اس بری طرح سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خودکشی کرنا باقی رہ گئی ہے۔ عوام جس طرح روٹی پہلے آٹے کے چکر میں پاگل ہوئی تھی، ابھی کل ڈالر بڑھ گیا، آج پیٹرول ابھی ایک دم سے زندگی میں پہلی دفعہ دن کے وقت جو ہے 11 بجے نے پیٹرول کو پیسے بڑھا دیے ہیں۔ عوام ویسی پاگل ہو گئی ہے، بھوکی مر رہی ہے، لوگ خودکشیاں پہ مجبور ہو گئے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں۔ خدا را عوام حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ خود عوام کا احساس کریں کس حالت میں عوام پس رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عوام جو ہے معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ حیدرآباد میں ہر شہری میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کرایوں میں بھی اضافہ ہوگا اور اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے ناصر، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں گے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بھی 35 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کو مسترد کر دیا ہے۔ مہنگائی کے مارے شہری حکومت پر برس پڑے۔ حکومت سے پیٹرول کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ چونیا سے ہمارے نمائندے مہر وقار انور ہمارے ساتھ ہیں۔ مزید صورتحال وہ بتا رہے ہیں۔ جی مہر وقار۔ اس وقت میں چونیا میں موجود ہوں۔ یہاں پر عوام کے اوپر ایک دفعہ پھر سے جو پیٹرولیم مصنوعات کا بم ہے وہ گرا دیا گیا ہے۔ 35 روپے پیٹرول اور 35 روپے ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر جو پیٹرول پمپ مافیا ہے انہوں نے رات سے ہی پیٹرول دینا بند کیا ہوا ہے۔ اسی والے سے بات کرتے ہیں، یہاں پر ایک شہری موجود ہے۔ جی، حکومت نے جو پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، جو ڈیزل ہے وہ 35 روپے، جو پٹرول ہے وہ 35 روپے کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ جو رات سے پٹرول پمپ مالکان مافیا وہ پٹرول اور ڈیزل دینا بند کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے چونیا کے شہریوں کو بہت ہی پریشانی ہے۔ حکومت کو چاہیے جو پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کیا ہے اس کو واپس لیا جائے۔ اوپر سے جو مہنگائی ہے وہ پہلے ہی بہت زیادہ تھی۔ جی جیسا کہ آپ نے اس شہری کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو پیٹرول پمپ مافیا ہے انہوں نے... ٹھیک ہے، بہت شکریہ مہر وقار انور، آپ ہمیں اپڈیٹس دے رہے تھے۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے پر جہاں عام شہری پریشان ہیں، وہیں ٹرانسپورٹرز بھی نالا نظر آ رہے ہیں۔ پنڈ دادن خان میں ڈرائیورز پیٹرول کی نئی قیمتوں پر سراپا احتجاج ہیں۔ کیا کہتے ہیں ڈرائیورز، جان لیتے ہیں سلیم باگڑی سے۔ جی سلیم۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں پنڈ دادن خان کے ٹیکسی سٹینڈ پر۔ آج یکدم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 35 روپے تک کے اضافے کے بعد یہاں کے ٹیکسی ڈرائیور کیا کہتے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس پیٹرول کی قیمتوں کے بڑھنے سے ان کے کام پر کتنا اثر پڑے گا۔ کام تو پہلے ہی نہیں تھا، ابھی یہ جو پیٹرول بڑھا ہے اس سے جناب
کام اور جو ہے نا بالکل کم ہو گیا. سواری بھی جو ہے وہ پہلے بھی کم تھی, ابھی بھی جو ہے نا پیٹرول بڑھنے سے سواری کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بالکل ان کا کہنا ہے کہ کام تو پہلے ہی بالکل نہیں تھا, پیٹرول کی قیمت بڑھنے کے بعد ہم بالکل بے روزگار ہو کے رہ گئے ہیں. جی ٹھیک ہے سلیم, بہت شکریہ آپ کا. مہنگائی کے طوفان سے کسان مزدور سبھی پریشان ہیں. 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا ہے. شہریوں نے حکومت سے بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. مہنگائی کی کیا صورتحال ہے جانتے ہیں فاروق آباد میں موجود اپنے نمائندے عبدالمجید سے. جی عبدالمجید. جی بالکل, پنجاب کی زرخیز سونا اگلتی زمین پر جدھر دیکھیں ہری بھری گندم کی فصل لہلہاتی خوشیاں بکھیرتی نظر آتی ہے. پاکستان کے کسان اور مزدور نے اپنی محنت اور طاقت کے بل بوتے پر وطن عزیز کو ہر اس چیز میں خود کفیل بنایا جس کی متوسط طبقے کو ضروریات زندگی میں ضرورت تھی. لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمرانوں کی ناقص حکمت عملی کے باعث نہ صرف کرپشن بڑھی بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی بھی بڑھتی گئی. اور آج مہنگائی کا جن بوتل سے نکل کر ایسے دندنا رہا ہے کہ اس کو قابو کرنا حکمرانوں کے بس کی بات نہیں رہی. اور مہنگائی میں جکڑی عوام کے لیے 2 وقت کا کھانا اس قدر مشکل ہو چکا ہے کہ ہماری خواتین کو 10 کلو آٹے کے حصول کے لیے گھنٹوں قطاروں میں لگ کر ذلیل و خوار ہونا پڑ رہا ہے. اور بنیادی اشیاء چینی, دالیں, سبزیاں, پھل, گوشت اور مریضوں کے لیے ادویات خرید کرنا عام آدمی کے لیے ناممکن ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ متوسط طبقہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے. اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ اقتدار کی کرسی کی کھینچا تانی میں مصروف ہیں, جبکہ عوام کا یہی مطالبہ ہے کہ مضبوط حکمت عملی کے تحت عام آدمی کو ریلیف فراہم کیا جائے. جی. بڑھتی مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف کرکم تحریک انصاف کے کارکنوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے. پی ٹی آئی کارکنوں نے ضلعی صدر عنایت خٹک کی قیادت میں مہنگائی کے خلاف ریلی نکالی. مظاہرین نے تحصیل چوک سے استفام چوک تک پیدل مارچ کیا اور نعرے بازی کی. مقامی قائدین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے کے لیے پی ڈی ایم نے مہنگائی کا بہانہ بنایا. اب مہنگائی میں 200% اضافہ ہوا ہے مگر پی ڈی ایم جماعتیں بالکل خاموش ہیں. گھوٹکی کے سب سے بڑے قبرستان لال شاہ بخاری میں سیوریج کا گندا پانی داخل ہو گیا. قبروں کی بے حرمتی ہونے لگی. قبضہ مافیا نے قبرستان کی 4 دیواری توڑ کر اپنے مکانات بنا لیے ہیں. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں گھوٹکی سے ہمارے نمائندے غازی وسیر سے. آج کچھ مزید خبریں بھی شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے نیوز کے ساتھ. ابھی آپ کو براہ راست سے چلیں گے. نون لیگ کے رہنما احسن اقبال اس وقت ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں. آج ہمارے گلے میں وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ توک بن کے پڑا ہوا ہے جس پر عمران خان کی حکومت دستخط کر کے گئی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ روپے کی قیمت نہ گرے, پیٹرول کو قابو کریں, بجلی گیس کی قیمتوں پہ قابو کریں, لیکن آئی ایم ایف نے کہا کہ اگر آپ اس معاہدے پر عمل. وفاقی وزیر احسن اقبال اس وقت نارووال میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ معاشی مشکلات ہیں جن سے نکلنے کے لیے مل کر چلنا ہوگا. ایک شخص نے 4 سال ملک کو یرغمال بنائے رکھا اور ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. نارووال میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں وفاقی وزیر احسن اقبال. اس وقت موجود ہیں نارووال میں اور وہ ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں. مالیاتی نظم و ضبط کی ضرورت ہے اگر معاشی مشکلات سے نکلنا ہے. کوئٹہ میں رات بھر سے بارش کے بعد برف باری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. بارش اور برف باری کے باعث سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. چمن شہر اور گردنواں میں بھی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے. بارش اور برف باری کی وجہ سے سردی کی شدت بڑھ گئی ہے. چمن سمیت شمالی بلوچستان کے بیشتر اضلاع کے پہاڑی علاقوں میں بارش اور برف باری کا نیا سسٹم داخل ہو گیا ہے. درہ کویک ٹاپ, شیلا باغ, خواجہ عمران, دوبندی اور توبہ چکزئی میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے. چمن درہ کویک ٹاپ میں قومی شاہراہ سے ہیوی مشینری کے ذریعے برف ہٹانے کا کام بھی جاری ہے. کویک ٹاپ شاہراہ پر پی ڈی ایم اے اور لیویز اہلکار نمک کا چھڑکاؤ بھی کر رہے ہیں.
उधर रुझान में सैलाब के बायस मुतासरा सड़कें तामीर न हो सकी, मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा है। इंतजामिया की जानिब से सड़कों की बहाली का काम भी सुस्त रवि का शिकार है और शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं अली असदुल्ला। बिल्कुल इस वक्त मैं रुझान चौक रोड के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सैलाब को गुजरे 5 महीने गुजर चुके हैं। एक तरफ सैलाब ज़दगान कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, दूसरी जानब रुझान में जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद है। जी बताइएगा, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी, हमारा कोई मरीज़ हो, हमेशा हॉस्पिटल तक जाने के लिए आधा घंटा वक्त लग जाता है। ये सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। हमें मजदूरी करने के लिए चौक तक जाना पड़े तो आधा घंटा लगता है, पहले 5 मिनट लगते थे, अभी आधा घंटा लगता है। मेहरबानी कर स्कूल बच्चे स्कूल जाने के लिए भी वक्त बहुत लगता है। अगर कोई बारिश हो जाए यहाँ से हम जा नहीं सकते, मेहरबानी करके हमें ये रास्ते ठीक करवा दे, हमारी हुकूमत से ये अपील है। जी बिल्कुल, शहरियों को यही कहना है कि जो है यहाँ पर सड़कों को जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि हमें जो है वो सहूलियात फराहम की जाएँ। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो सड़कों का जो काम है वो शुरू कर दिए गए, लेकिन 100 में से 10% ही कहा जा सकता है कि यहाँ पर काम शुरू किया गया है। लेकिन ताहाल जो है यहाँ पर जो शहरी हैं, यहाँ पर इलाके के जो लोग हैं वो बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके देहात से आते हुए शहर तक उनके बच्चों को स्कूल और हॉस्पिटल तक उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। उनका यही कहना है कि हुकूमत से हमारी अपील है कि जल्द से जल्द जो है इन सड़कों की बहाली का जो सिलसिला है उनको बहाल किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। उधर सैलाब को गुजरे 6 माह गुजर गए हैं, लेकिन नसीराबाद के इलाके कबा शेर खान जमाली के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम नहीं हो सकी। सख्त सर्दी के बाद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। मजीद सूरत हाल बताएंगे लियाकत अली। मौजूद हूँ कबा शेर खान में, जहाँ सैलाब की तबाहकारी को गुजरे 6 माह का अरसा हो चुका है। ताहाल यहाँ के सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। बढ़ती हुई सर्दी ने इनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। मेरे साथ यहाँ पर मुतासरीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मजीद इस इनका क्या कहना है? बहुत सर्दी है यहाँ, बहुत खुले आसमान में पड़े हैं। यहाँ जो 6 माह से ज़्यादा हो गया है पानी से गुजरे हुए, सैलाब में इधर बहुत तकलीफ में थे। हमारे साथ अभी तो कोई कंबल वगैरह नहीं है, कोई बिस्तरा नहीं है, हम तो खुले आसमान में ऐसे पड़े हैं। जिस तरह आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि सैलाब ने यहाँ पर तबाही मचाई थी। उन्होंने ज़िला इंतजामिया से मुतालबा किया कि यहाँ के गोठों का सर्वे करके इन्हें रिफराम किया जाए ताकि वो यहाँ। ठीक है लियाकत अली, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन के दिनों में नजर आने वाले अवामी नुमाइंदे मुश्किल वक्त में गायब हो जाते हैं। मुंतखब नुमाइंदों ने डेरा लायार के सैलाब मुतासरीन को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। सैलाब मुतासरीन हुकूमती नुमाइंदों की राह तकने लगे। सैलाब मुतासरीन का इस बारे में क्या कहना है, तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ इनायतुल्लाह से। जी इनायतुल्लाह। सैलाब को गुजरे 6 माह हो गए, लेकिन जाफराबाद के जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके दर्द कम ना हो सके। मैं इस वक्त डेरा लायार के नवा तुर्किश कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ सैलाब मुतासरीन यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी जो ख़वातीन हैं आए, हम उनसे पूछते हैं कि उनको यहाँ पर क्या तकालीफ़ हैं, आया उनकी मदद के लिए यहाँ पर कोई ज़िले इंतज़ामिया की या मुंतखब नुमाइंदा यहाँ पर आया, उनकी मदद की या नहीं की, इस हवाले से आए उनसे बात करते हैं। और वहाँ ट्रेवण का सब वहाँ टेंशन का शय भी नहीं मिलता पे ज़ैफ़ मर्द सिर्फ वहाँ ट्रे दुख सुख थे, न बीमारी थे, न बड़ी थे, न कोई भी नज़दीक असर नहीं आता पे। उनका कहना था कि मुंतखब नुमाइंदे इलेक्शन के दौरान या वोट लेने के वक़्त खुसूसन ख़वातीन के पास आते हैं, जो है इलाके के मोतबरीन आते हैं कि हमें वोट दिया जाए, लेकिन इस मुसीबत के वक्त में यहाँ हमारे पास कोई भी नहीं आया है, ना ही कोई ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से, ना ही मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से कोई आया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इनायतुल्लाह। ज़िला मीरपुर ख़ास की तहसील झुड्डू में सैलाब मुतासरीन की ज़िंदगी अज़ाब बन गई है। 6 माह बाद भी प्राण नदी के बंद पुख्ता करने और बहाली के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं झुड्डू से अजीम आराइन। जी बिल्कुल, हालिया सैलाबी सूरत हाल को 6 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, पर सिंध हुकूमत की नाहली की वजह से आज भी पुरान नदी और डोरो पुरान के जो है वो बंद मजबूत नहीं किए गए हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं, हम इस वक्त जो मौजूद हैं 316 के बंद के मकाम पर, जहाँ से जो है वो शगाफ पड़ा था इस पुरान नदी को, जिससे जो है वो 316, 315 और 271, 272 तक जो है वो ये यहाँ से लेकर रोशनाबाद तक ये सारा इलाका जो इस शगाफ की वजह से डूबा था। यहाँ पर
लाखों एकड़ पर खड़ी जो है वो फसलें भी लोगों की तबाह हुई थी। यहाँ की आवाम को जो है वो कोई भी हुकूमत की तरफ से रिलीफ नहीं दिया गया है। तहसील जुड्डो के लाखों एकड़ पर ज़री आबादी भी जो है वो मुतासर हुई थी, पर सिंध हुकूमत की जानिब से अभी तक इन पुरान नदी के शगाफ बंदों को जो है वो बंद करने का काम शुरू नहीं किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। सरगोदा में आपने पुलिस मुहाफिज स्क्वाड के जवानों को सड़कों और गलियों में पेट्रोलिंग करते हुए और लोगों की मदद करते हुए तो देखा होगा, लेकिन ये लोग अपनी ड्यूटी का आगाज़ और इख्तिताम कैसे करते हैं और किस जज्बे और अज़्म के साथ फील्ड में निकलते हैं, इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इमरान गुराया। सरगोदा शहर में 90 पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल मोटरसाइकिल मुहाफिज स्क्वाड का दस्ता शहर में अमन अमान की फिजा कायम रखने के लिए पुरअज़म। सिटी सर्कल में तैनात मोटरसाइकिल मुहाफिज स्क्वाड के एहलकारों की खास तरबियत की जाती है। चुस्त वर्दी, जदीद सरकारी असला, जोशीले शेर जवानों ने अवाम के दिल जीत लिए। मुहाफिज स्क्वाड की ड्यूटीज जो है वो मल्टीपल्स हैं, ऑपरेशनल मामला भी हैं, पेट्रोलिंग भी है और उसके अलावा सिक्योरिटी ड्यूटीज़ भी कई दफ़ा जो कहीं राउंड अप करना पड़ता है। बेसिकली जो मेन ड्यूटी मुहाफिज स्क्वाड की है वो स्ट्रीट रॉबरीज, जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उनके अगेंस्ट है। जराइम की रोकथाम के लिए बनाई गई स्पेशल फोर्स ने मंशात फरोश राजनी में मुलव्विस टिकट गैंग जवारी मोटरसाइकिल चोरों का सफाया कर दिया। इंचार्ज मुहाफिज स्क्वाड असद हयात भवाना के मुताबिक 15 की कॉल पर 5 से 7 मिनट में रिस्पांस दिया जाता है। 15 की कॉल जब हमें मिलती है मुहाफिज स्क्वाड को तो मुहाफिज स्क्वाड 5 से 7 मिनट में रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन उससे पहले भी कर लेते हैं। उसकी सिर्फ कॉलर की जो होती है, अगर कॉलर लोकेशन एग्जैक्ट बतलाता है तो उसमें हम बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। उनका कहना है पुलिस के जवान ऐसे ही अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें तो यकीनन जराइम का खात्मा हो सकता है। कैमरामैन राजा शाहिद के साथ मोहम्मद इमरान गुराया, न्यूज़ सरगोदा। कुछ मज़ीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। कोयटा में रात भर से बारिश के बाद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हुआ है। मौसम का अहवाल जानते हैं उस्मान फानी से। जी बिल्कुल, इस वक्त कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में जो है ना बर्फबारी हो रही है। आप लोगों को बताता चलूँ कि रात से जो है ना कोयटा में बारिशों का सिलसिला जारी व सारी था, ताहम सुबह बारिश जो है ना रुक गई, जिसके बाद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। और इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ कोयटा के MA जिना रोड पे। यहाँ पे इस वक्त कोयटा में जो है ना बर्फबारी हो रही है, जिसके बायस शहरी भी बाहर निकले हैं घूमने फिरने के हवाले से। कुछ लोग जो है ना फैमिली के साथ तफरीही मकामात पे पहुँच गए हैं और कुछ लोग ऐसे जो गाड़ियों में बाहर निकले हैं और एंजॉयमेंट के हवाले से बर्फ को एंजॉय कर रहे हैं। एक वजह ये भी है कि गैस की अदम दस्तयाबी, गैस की लोड शेडिंग की वजह से घरेलू जो सी गैस के घरेलू सारिफिन हैं वो भी कुछ खासा मुतासिर हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर आए हैं और बर्फ़ को देख रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। जो मौसम की सूरत हाल है इस वक्त कोयटा में -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस टाइम पर महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों तक जो है ना ये बर्फ़ का सिलसिला कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में जारी व सारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। उधर लाहौर में बारिश से सर्दी बढ़ गई है। फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग, कलमा चौक, सदर, कैंट समेत दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अरसलान जावेद। जी बिल्कुल, शहर लाहौर को सर्दी ने अपनी लपेट में ले लिया है। इस वक्त शहर के अंदर अच्छी खासी सर्दी महसूस की जा सकती है, जिसकी एक बड़ी वजह एक तो ठंडी हवाएं चल रही हैं और दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने क्योंकि इतवार के रोज़ बारिश की पेशगोई कर रखी थी, तो इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। खासकर बूंदाबांदी लगातार हो रही है और उसके साथ तेज़ ठंडी हवाएँ चल रही हैं, जिस वजह से सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। और ख़ासकर देखा जाए तो दर्जा हरारत जो है वो काफ़ी नीचे आ चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। कम अज़ कम जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच चुका है। तो दर्जा हरारत भी नीचे आने से और तेज़ ठंडी हवाओं की वजह से सर्दी एक बार फिर से जो है अपने जोबन पर दिखाई दे रही है। और अगर देखा जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक बताया गया कि आज जो है वो बारिश के कभी इम्कानात हैं, जो चंद मकामात पर शुरू हो भी चुकी है और बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। ताहम कल से दोबारा जो है वो रूटीन के मुताबिक ही मौसम पहले की तरह धूप जो है वो दिन के वक्त नज़र आएगी और शाम के वक्त जो है हल्की सर्दी महसूस की जा सकेगी। जी ठीक है अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका। दादू शहर में गंदगी के अंबार लगे हैं, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। जगह जगह कचरे के ढेरों से अवाम अजियत में मुब्तला है। शहर की सफाई सुथराई का निज़ाम भी दरहम भरम है, गटर और नाले उबलने लगे हैं। मजीद सूरत हाल बताएंगे हमारे नुमाइंदे अरबाब अली रुस्तमानी। जी बिल्कुल, मौजूद हूँ दादू शहर के गरीबाबाद में, जहाँ पे गटर का जो पानी है
गलियों में मौजूद है और शहरी सख्त परेशान है। हमारे साथ शहरी एक मौजूद है, मजीद बात करेंगे उनको क्या मुश्किल आ रहे हैं। भाई हम गरीबाबाद के रहवासी हैं। ये दादू शहर का बहुत जो पुराना मोहल्ला है गरीबाबाद है, और आपकी कैमरा देख सकती है कि हमारे इस मोहल्ले में क्या सिचुएशन लगी पड़ी है। ये पूरे मोहल्ले के जो गटरों का पानी है वो सारा रोडों पर है, और ये जब से शऊरी जिंदगी में हमने ये अपने रोड रास्ते नहीं देखे बने हुए। ये मस्जिद है, ये नमाज यहाँ से अभी आ रहे हैं तो ये भी अभी 3-3 गलियां घूम के अपने घरों तक जा रहे हैं। इस सिलसिले में मैंने पीर मुजीबुल हक साहब से जो है ना रुजू किया। पीर मजहरुल हक साहब जो हमारे एक्स जो मिनिस्टर हैं उनको भी मैंने व्हाट्सएप पर SMS किए कि हम भी दादू शहर के रहवासी हैं, गरीबाबाद भी आपके दादू शहर का, आपके हल्के का ये बिलाई का है, खुदारा हमारे हाल पर रहम खाएं। जी बिल्कुल, इलाका मकीनों ने ज़िला इंतज़ामिया और मुंतखब नुमाइंदों से यही मुतालबा किया है दादू शहर में जो हम रहते हैं, हमारा जो मोहल्ला है उसकी सफाई सुथराई का बंदोबस्त किया जाए। जी उधर फैसलाबाद में सड़कों का बुरा हाल है। बजाला कॉलोनी, यूनिस टाउन, मदीना टाउन, पीपल्स कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है, जिससे शहरी भी परेशान हैं। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शौकत वट्टू। आज बिल्कुल ये फैसलाबाद का इलाका गुलाम अहमदाबाद है, जिसमें जो एक शहरियों का दरीना मसला था कि जो गंदे नाले की छत जो है वो बिल्कुल छत ना होने की वजह से हादसात भी हो रहे थे। अब बच्चे इसमें गिर जाते थे, ख़वातीन जो इसमें गिर जाती या मुसाफिर यहाँ पे गुजरते हुए गिर जाते थे, जिसकी वजह से जो है शहरी खासे परेशान थे। और इसका बजट जो है मंजूर होने के बाद ये काम जो है शुरू किया गया, जिसके बाद अब 6 माह से तकरीबन 6 माह हो चुके हैं ये काम रुका हुआ है। और जो बोर्ड जो अवेदा कर दिए गए हैं सियासी MP MN इस जानब से जो है वो यहाँ पर इफ्तिताई तकरीब के जो है वो बोर्ड वज़ा है, लेकिन यहाँ पर काम मुकम्मल नहीं हो सका। इस में अगर कैमरा मैन इब्राहिम अहमद आपको दिखा सके तो ये पड़िया जो तैयार की गई हैं लेकिन अभी तक इनको रखा नहीं गया, जिसकी वजह से ये नाला जो है वो अभी छत से महरूम है। और जहाँ पर अहले इलाका जो है वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि उनका ये दरीना मसला था जिस पे जो है सियासत भी काफ़ी हुई और वोट भी हासिल किए गए, लेकिन अब तक इस पर जो है मुकम्मल छात नहीं डाली गई, जिसकी वजह से हादसात भी हो रहे हैं। मिस्टर शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे आप? और ये 8 महीने हो गए, आप पहले 4 करारे दे के चले गए, मुड़ के 2 महीने नहीं आए है, मुड़ के आ सलेटाइयाँ रख के चले गए, वो भी तुसी देख लो जिदा रखिया हुई, हाले तक भी नहीं पूरियां हुई। MN ने अपने बोर्ड लाए हुए हैं, छत सारी मुकम्मल हो गई। बिल्कुल शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं और कहते हैं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो नामुकम्मल काम होने की वजह से, गंदे नाले की छत ना होने की वजह से वो मुश्किलात का शिकार हैं और यही मुतालबा कर रहे हैं कि इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात जो है वो कम हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। उधर राजनपुर में कचहरी चौक पर इंतजामिया के नाअहली की वजह से तजावुजात की भरमार है। मरकजी रास्तों पर गैर कानूनी तामीरात से शहरियों का पैदल चलना भी मुहाल हो गया है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अता मोहम्मद। हाँ जी बिल्कुल, जो है इस वक्त राजनपुर में जो है यहाँ पर कचहरी चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है म्यूनसिपल कमेटी के नाअहली की वजह से जो है तजावुजात की जो है भरमार हो गई है, जबकि दूसरी जानिब जो मेन रास्ता है वहाँ पर जो है म्यूनसिपल कमेटी के अमले के जो है गठ जोड़ से यहाँ पर रेडियाँ जो है खड़ी कर दी गई हैं। यहाँ रक्षों का आमद का जो सिलसिला है वो जारी है, जबकि दूसरी जानिब मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं ये आम लोगों के इस्तेमाल का रास्ता है। यहाँ पर आम शहरी गुजरते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है म्यूनसिपल कमेटी के अमले की जो है गठ जोड़ की वजह से यहाँ रेडियाँ खड़ी हो गई हैं, लोगों ने तजावुजात यहाँ खड़े कर दिए हैं, जबकि जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों का जो गुजरना है वो इंतहाई मुश्किल होकर रह गया है। जबकि दूसरी यहाँ पर यहाँ गुजरने वाले लोगों की जानब से ये कहा जा रहा है कि आज तक यहाँ पर CO म्यूनसिपल कमेटी का विजिट तक नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो यहाँ पर तजावुजात हैं वो अब तक इसी तरह जो है उनमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। जी सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सोहावा में तालिबात की करियर काउंसलिंग बारे सेमिनार का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा अनम बाबर ने खुसूसी शिरकत की और तालिबात को CSS बारे लेक्चर भी दिया। मज़ीद बता रहे हैं शेख अली रज़ा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इस वक्त सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सोहावा में मौजूद हूँ और यहाँ पे आज CSS के हवाले से एक प्रोग्राम का इनकार किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा अनम बाबर को मेहमान खुसूसी बुलाया गया, जिन्होंने जो तलबात थी उनको लेक्चर दिया कि CSS के हवाले से कि CSS में जाके क्या फ़ायदे हैं और इसको कैसे करना है। मेरे साथ इस वक्त इस कॉलेज के प्रिंसिपल मौजूद हैं, ये इनसे जानते हैं कि आज का जो प्रोग्राम था इनकार करने का क्या मकसद था और इससे तलबात को क्या फ़ायदा होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ये रवायात हैं कि हम हमेशा अपने बच्चों को सही डायरेक्शन में लेके जाते हैं और कैरियर काउंसलिंग के हवाले से उनके लिए सेमिनार का इनेकाद करते हैं। आज का जो सेमिनार था ये बेसिकली, चूँकि हमारी जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो ख़ुद CSP ऑफिसर हैं, तो हमने बच्चियों के लिए आज एक गैदरिंग की जिसमें उनको हमने एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया और उनसे गुजारिश की कि वो बताएं कि CSS का एग्ज़ाम कैसे तैयार किया जाता है, इसकी तैयारी कैसे होती है और इसके आगे फ्यूचर्स क्या हैं, और बच्चों को, ख़ास तौर पे बच्चियों को इसके कामयाबी के लिए क्या इक़दामात लेने चाहिए। और बहुत अच्छा सेमिनार रहा जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर ने इनको आगाह किया। ओवरऑल भी हम जो स्कूल्स का विज़िट भी करते हैं, जिसके बारे में आज के सेमिनार में मैंने आगाह भी किया कि आम तौर पे जो स्कूल्स हैं वो जस्ट जाकर अपने एडमिशन्स के लिए कैंपेन करते हैं, लेकिन सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ये एक अलग रवायत है कि हम मैट्रिक के बाद पास होने वाले बच्चों को, क्योंकि उनके सामने 5 कैरियर्स होते हैं, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, ICOM एंड FA, तो उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं होता और बच्चों को इसका पता नहीं होता, वालिदैन को भी आगाही नहीं होती कि उनको किस फील्ड में जाना चाहिए। तो इस सिलसिले में हमारा एक टेस्ट सिस्टम हमने बनाया है, साइकोमेट्रिक टेस्ट है, जिससे बच्चे के माइंड को रीड किया जाता है और उसके सवालात के बाद हम उसका रिज़ल्ट बनाते हैं और फिर उनको सही डायरेक्शन में लेके जाते हैं। तो ये हमारी कोशिश है। यहाँ हम आलमोस्ट कोई 2500-3000 बच्चे का ये कैरियर काउंसलिंग टेस्ट भी कर रहे हैं ताकि हमारी नौजवान नस्ल सही रास्ते का इंतखाब करे और वो एक सुपीरियर पाकिस्तानी बने। जी बिल्कुल, प्रिंसिपल का कहना है कि यहाँ पे पढ़ने वाले जो तलबा व तलबात हैं उनके लिए ये सेमिनार का इनकार किया गया कि उनको आसानी हो कि हम CSS हमने कैसे करना है, और इसके लिए जो कैरियर काउंसलिंग है उसके लिए हमने जो आज के जो चीफ गेस्ट थी वो असिस्टेंट कमिश्नर सुहावा को बुलाया ताकि वो बेहतर अंदाज से इनको बता सके कि फ्यूचर में आप जाके अपने जो पाकिस्तान का जो है मुस्तकबिल वो कैसे बना सकते हैं। जी, महंगी अद्वियात और सरकारी अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात के फुकदान पर अब इलाज कराना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में जैकबाबाद में साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद मियां सुमरू की जानिब से 3 रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया है। कैंप में अमराज चश्म में मुब्तला मरीजों का माहिरीन ने मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात दी। असद अली मुगल रिपोर्ट कर रहे हैं। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए इलाज कराना आसान नहीं रहा। डॉक्टर्स का खर्च, अद्वियात की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। ऐसे में जैकबाबाद में साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद मियां सुमरू गरीब लोगों को मुफ्त तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए मैदान में आ गए। बाबा फरीद ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। मोहम्मद मियां सुमरू का कहना है मुतवस्सित तबका महंगा इलाज बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिनकी मदद के लिए कैंप लगाया गया है। ये जैकबाबाद काम की बड़ी खिदमत है। रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको जारी रखें और ज़्यादा उनकी फ्रीक्वेंसी करें। फलाही काम ये इंशाल्लाह जो हो रहे हैं, अल्लाह आपकी दुआ से, अल्लाह ताला का करम है, इसमें इंशाल्लाह जहाँ हो सकेगा ये होता रहेगा। अगर आप यही ऑपरेशन आगा खान से कराएं ना तो ये 1.25 लाख रुपए का होता है, जो कि यहाँ घर पे दहलीज पे लोगों को मुफ्त में मिल रहा है। ये गरीबों के लिए बहुत जो है ना, जो नहीं करा सक रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। जिनके बेचारे जो अपना जो है ना रोटी और जो है ना वो भी नहीं खा सकते हैं। कैंप में इमराज चश्म में मुब्तला मरीजों का माहिरीन ने मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात दी। फ्री आई कैंप में 2500 से ज्यादा मरीजों के मुफ्त ऑपरेशन किए गए, जिस पर शहरियों ने 3 रोज़ा फ्री कैंप को मोहम्मद मियां सुमरू की अच्छी काविश करार दिया। असद अली मुगल, न्यूज़ जैकबाबाद। सोबतपुर के गांव मुरीद खान बरोही में बेसिक हेल्थ यूनिट अस्पताल तामीर हुए कई साल गुजर गए हैं, लेकिन अस्पताल अब तक गैर फाल है। BHU अस्पताल में अमला भी तैनात नहीं हो सका। BHU की इमारत भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। इसी पर मजीद तफसीलात बता रहे हैं गुलाम नबी जमाली। जी शुक्रिया। सेहत के हवाले से अगर बात की जाए ज़िला सोबतपुर की, तो यहाँ के अवाम सेहत की अहम बुनियादी सहूलियत से महरूम नज़र आ रहे हैं। ज़िला भर में कई सरकारी अस्पताल महकमा गफलत और लापरवाही की वजह से गैर फाल हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेसिक हेल्थ यूनिट मुरीद खान बरोही में, जो तामीर के कई साल गुजरने के बावजूद अब तक गैर फाल है। ताल अस्पताल में अमला तैनात ना हो सका है। अस्पताल के अंदर और बाहर से ताले लगे हुए हैं। अस्पताल के अंदर ये हालत है कि इस वक्त भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। इलाका मकीन अस्पताल की बंदिश की वजह से सख्त परेशान है और मजबूरी की बिना पर प्राइवेट क्लिनिक्स में महंगे दामों इलाज करने पर मजबूर हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि जिला इंतजामिया अस्पताल को फाल बनाकर यहाँ की आवाम को सहूलियत फराहम करे, जबकि इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर सोबतपुर और यहाँ के मुंतखब नुमाइंदा और से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कुछ मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। दिल्ली
دلکش ہزارہ کھولیاں کلا کے مقام پر سینکڑوں سال پرانی چکیاں جو آج کے جدید دور میں بھی اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں. لوگ آج بھی یہاں سے تازہ گندم کا آٹا اور دالیں پسوا کر لے جاتے ہیں. مزید بتا رہے ہیں تاج بخاری. جی بالکل، میں موجود ہوں دلکش ہزارہ کھولیاں کلاں کے مقام پر، جہاں پہ خوبصورت کھلیان اور کھیت ہیں، جہاں پہ ہر طرف ہریالی ہریالی ہے اور سینکڑوں نہریں جو ہیں وہ یہاں سے گزر کے جا رہی ہیں مختلف جگہوں کی طرف. بہت خوبصورت مناظر ہیں. یہاں پہ قدیمی جندر یہاں پہ موجود ہے، جہاں پہ تازہ آٹا جو ہے وہ پیس کے لوگوں کو دیا جاتا ہے. بغیر بجلی کے یہ جندر چلتے ہیں. ان بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں کہ یہ جندر کس طرح چل رہے ہیں اور بغیر الیکٹرسٹی کے کیسے کام کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ جندر پرانے ہیں جی، ہمارے اباؤ اجداد دادا پردادا کے زمانے میں، اور یہ جندر صرف پانی سے چلتے ہیں. میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں یہ نیچے سارا پانی ہے اور پتھر لگے ہوئے ہیں. پتھر میں کوئی سیمنٹ نہیں، کوئی مٹی نہیں، کیونکہ وہ خود ہی ان کے میکینک تھے بنانے والے. اور یہاں پہ اپنا یہ جگہ جو ہے، یہاں پہ ہم گندم کے دانے گراتے ہیں اور یہاں آگے اس میں گرتے ہیں اور یہاں سے تازہ آٹا نکل رہا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں کراچی تک یہاں سے تازہ آٹا لے کے جاتے ہیں. اس آٹے کا ایک اپنا مزہ ہے. اور خوبصورت یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو نہری نظام قدرتی طور پہ یہاں پہ آ رہا ہے، یہ سردیوں میں جو ہے وہ گرم پانی اور گرمیوں میں جو ہے وہ ٹھنڈا ٹھار پانی ہے. آپ بھی تشریف لائیں، دیکھیں قدرتی طور پہ یہ پرانے دور کے جندر جو ہے کس طریقے سے چل رہے ہیں. جی ٹھیک ہے تاج بخاری، بہت شکریہ آپ کا. بلند و بالا برفپوش پہاڑوں کی سرزمین ضلع خضر کی سب ڈویژن یاسین میں 3 روزہ ونٹر فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا ہے. فیسٹیول میں آئس ہاکی کی 12 میل اور فیمیل ٹیموں نے حصہ لیا ہے. ٹورنامنٹ کا فائنل یاسین جانباز اور خضر ایگل کے درمیان کھیلا گیا. 20 منٹ میچ برابر ہونے کی صورت میں پینلٹی کک پر یاسین جانباز نے 1 کے مقابلے میں 2 گول کر کے خضر ایگل کو شکست دے کر فتح اپنے نام کر لی. خضر سے سلیم شری رپورٹ کر رہے ہیں. ضلع گزر کی سب ڈویژن یاسین میں 3 روزہ ونٹر فیسٹیول اختتام پذیر. شدید سردی اور برف باری کے باوجود ہزاروں خواتین، مرد، بچوں اور سیاحوں کی بڑی تعداد نے خوب انجوائے کیا. بوڑھے افراد نے چوغے پہن کر ثقافتی کھیل دپ کھیلا. گرتے سنبھلتے کھلاڑیوں نے شائقین سے خوب تعداد وصول کی. یہ ایونٹ سردیوں میں یہاں پہ انعقاد کیا گیا ہے اس کا، اور یہ یہاں کے یوتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور یہاں کے لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے. جبکہ یاسین جانباز. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کچھ ہی دیر میں حاصل ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.